Okay. Good morning, dear students. Hope you are enjoying your study. Well, let's continue with our topic. तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? We are going through our chapter number 7, getting to know plants. प्लांट्स के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो अब तक हमने 2 लेक्चर में क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ओके, हर्ब्स, shrubs, trees, climbers and creepers. Herbs, medium size, stem is green and weak, but still it can support the plant. Okay, then ऑलमोस्ट आपके सीजनल है ये फ्लावरिंग प्लांट जो आपके सीजनल है, वेजिटेबल्स हैं, ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्ब्स. आपसे साइज में छोटे भी हो सकते हैं. ओके, छोटे ही होते हैं अक्सर, कहने का मतलब. shrubs, they are not small, medium size, having woody stems which just branches out near the ground. कहने का मतलब क्या है? इनका स्टेम तो वुडी होता है, हार्ड होता है, साइज मीडियम है, और इनकी लाइफ भी क्या है, कुछ सालों तक होती है. ये जो आपके सिट्रस प्लांट जितने आते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ shrub. ट्रीज, टॉल, हैविंग बिग ट्रंक, उसका तना मोटा होता है, और ब्रांचेस कहां निकलती हैं? जमीन से ऊपर जाके. बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे. देन क्लाइंबर, यस, क्लाइंबर्स आर plants which are having green and weak stem. They cannot stand erect, they cannot support the plant, but they can readily, easily they can climb over the neighboring spot. दीवार है, कोई और चीज है उसके ऊपर, with the help of tendrils. Okay, creepers, yes, again, green and soft stems, weak stem, they cannot hold the plant and they just spread over the ground. They are creepers. They are creepers. ये आपका जो bottle gourd, घिया, कद्दू, ये सब जो बेलें हैं आपकी, ये किस में आती है? क्रीपर्स में आती है. Even your money plant is also a creeper. Okay. Then we have discussed about parts of plants. Parts of plants, 5 main parts: root, stem, leaves, flower and fruits. And we have studied in somewhat details about roots and stems. Roots, which goes vertically down, types of root, fibrous and tap root. ठीक है, tap root एक सीधी वर्टिकली जो टेपरिंग होती हुई रूट है, और जो उसमें साइड से जो ब्रांचेस निकलती हैं, we call them lateral roots. Okay. Then fibrous, गुच्छा एक ही जैसे, fiber type. That is why their name is fibrous. Fiber type, एक ही साइज की. They do not go deep in the. फिर हमने उसके फंक्शंस. फंक्शंस क्या है बच्चों? फर्स्ट मेन फंक्शन इज द एंकरिंग, सेकंड इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, उसके स्कैंडी फंक्शंस हैं. कैसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स, स्पोर्ट एज वेल एज एब्जॉर्प्शन. बनियन ट्री का मैंने क्रॉप फ्रूट्स का आपको बताया था. मनी प्लांट के अंदर अगेन स्पोर्ट है बच्चों. ठीक है. इन फ्यू प्लांट्स मतलब इन फ्यू ट्रीज, दे सर्व द पर्पज ऑफ ब्रीदिंग आल्सो. मैंग्रोव एक ऐसा बच्चों प्लांट, अपना ट्री है, ऐसा पेड़ है, विच ग्रोज इन मार्शी लैंड्स हैविंग गुड लॉट ऑफ साल्ट. उसके अंदर नमक वाला पानी या नमक वाले मार्शी लैंड में होता है. तो क्या होता है, जो नीचे उसकी जो रूट्स होती हैं, फ्रॉम देयर रूट्स कम आउट ऑफ द मार्शी लैंड ऑफ द वाटर. पानी से या उस मार्श जो दलदल वाली भूमि से उसकी वो रूट्स जो नीचे होती हैं, साइड से उसकी ब्रांचेस बाहर आ जाती हैं. दे हेल्प इन द ब्रीदिंग. तो कहने का मतलब क्या? मेन फंक्शन इज एंकरिंग, अब्जॉर्प्शन एंड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. रेस्ट, that the scandian few plants, not in all. Okay. Then we have discussed about the stem. Stem, उसके functions हमने पढ़े. Main function क्या है? It is giving a support. Second function क्या है? Transportation, two-way system, xylem and phloem, vascular tubes are there. Okay. Then special type of functions are also being performed.
In cactus plants, they are green, thallus-like, thallus बना होता है उसमें, ठीक है? Okay, what they do? They manufacture food for the plant. And you have seen some, क्या कहते हैं उसको, spines and thorns on the rose plant, citrus plant. What they are? They are modified stems. They are for the purpose of defense. Photosynthesis, defense, storage of food, onion, garlic, sugarcane. So they perform different functions also for the plant. ठीक है? Likewise, roots also special function, storage of food. अब क्या है? Carrot, radish, turnip, ये सब क्या है बच्चों? We eat is as a vegetable or fruit, salads. Okay. So we have discussed roots and stem in detail. Today we are coming over the third main part of the plant, which is leaf. ठीक है? Okay. Coming to the leaf. अगर ब्रॉडली हम इसको बच्चों एक्सप्लेन करना चाहें, व्हाट इज लीफ? लीफ क्या है बच्चों? थिन, फ्लैट, ब्रॉड एंड ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट. यानी कि कहने का मतलब क्या है? पतला सा, चपटा सा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, थिन, ब्रॉड, फ्लैट, चपटा. Different plants have different type of leaves. Their shapes and size are different. जैसे for the example I have brought with me few leaves. ये देखिए बच्चों, इसकी शेप देखिए, इसकी शेप देखिए, इसकी शेप देखिए. ठीक है? ये आम भाषा में इस पेड़ को हम पीपली बोलते हैं. ये अशोक ट्री का पौधा पत्ता है. ये ब्रिंजल बैंगन का पत्ता है. इसका पीछे से देखिए, फ्रॉम द बैक साइड आल्सो, दिस आल्सो, दिस. सो नाउ आई एम हैविंग bottle gourd leaf with me. Seems to be similar, but when you see closely, इनको दोनों को पास रख के देखते हो, यस, पीछे से इनकी जो वेरिएशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. इनके जो अंदर जाल सा बना हुआ है वो एक जैसा है. ओके, नाउ दिस इज द लीफ ऑफ ए फाइकस, रोज लीफ, लीफ ऑफ ए प्लांट गुधाल, लीफ ऑफ सदाबहार प्लांट, Chandani plant. That means you observe carefully, you will find difference in shape and size. Now, Indian gooseberry, आंवला, it is not a single leaf. हम बोल देते हैं पत्ता. No, it is not a single leaf. It is a compound leaf. ये छोटे छोटे जो है इसके अंदर, ये क्या है? लीव्स हैं. तो कहने का मतलब क्या है? लीफ इज व्हाट? A thin, flat, broad, green part of the plant. Okay? So, what are its functions? इसके बच्चों सबसे पहले क्या, before going to the functions, let us see what are the main parts. अगर हम बच्चों कोई भी लीफ देख रहे हैं, whether it is this leaf or this leaf, क्या है बच्चों? This or part or portion, it is having some small stick like, and it is attached through here with the branch of the plant. In this also you find the same thing. Here also it is same. So what is this thin, broad, green part, and what is this stalk and all that, and what are these lines and all that, or you can say some bulging or oozing out parts on the leaf. Here also it's visible, clear. Okay, so let's try to find out the different parts of the leaf. Okay, so
this is known as the blade, lamina और blade of the leaf. ये जो आपका सारा ये चपटा वाला पोर्शन है, जैसे आपका मेरा हाथ दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस? लैमिना, लीफ ब्लेड बोलते हैं इसको. और ये जो टिप है इसकी बच्चों, ये जो टिप, लीफ टिप, इट इज कॉल्ड एज द अपेक्स ऑफ द लीफ. और ये ओके दिस, ये जो बच्चों ये है, इसके बीच में ये नजर आ रही होगी आपको, ठीक है. दिस इज नोन एज द मिड रिब, और विच द ब्रांचेस ये जो आपको नजर आ रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेन्स. क्या बोलते हैं? वेन्स. ठीक है. और ये जो आपका डंडी सी है, स्टॉक सी है, जिससे ये पौधे के साथ जुड़ी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेटियोल. तो मेनली क्या है बच्चों? 2 पार्ट्स है, पेटियोल एंड द लैमिना और द ब्लेड ऑफ द लीफ. बाकी उसके अंदर क्या है? मिड रिब है, अरेंजमेंट्स ऑफ वेन्स एंड ऑल दैट है. ओके. और ये जो पोर्शन जहां ये अटैच होती है, ये वाला है, it is known as the axil, from where the leaf, axil bud and all that, from where the leaves come out of the, leaf is a singular and leaves are plural. Okay, they come out from the shoot, stem of the branch of the plant. So it is broadly the parts of the leaf. ठीक है. And this green material present in the leaf is the chlorophyll, which helps in the manufacture of food. इसका बच्चों कोई ऐसा मेन रोल नहीं है कि ग्रीन पार्ट जो है भोजन बनाता. नो, what it is doing, it is helping the plant to absorb and conserve the sunlight. It is the sunlight energy which converts the carbon dioxide from free nature and mixing up with the water and all that absorbed by the roots to manufacture glucose. Because glucose is a hydrocarbon, C6H12O6. अगर आप उसका फार्मूला लो तो क्या होता है बच्चों? C6H12O6. जब आप पर्टिकुलर 7th में आएंगे आपको बताऊंगा, 8th में आएंगे तो आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. C6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen. It is a glucose. एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का. तो इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है. इसमें कहीं वो क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट वो कुछ नहीं है. क्लोरोफिल का क्या काम है? टू to conserve the sunlight and help the plant to manufacture the glucose or the starch, okay, or food you can say. Anyhow, so now coming to the function. What functions of leaf? The main function of the leaf is what? To make food by the process of photosynthesis. Okay, yes. और जब ये भोजन बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, food, glucose plus oxygen free में निकलती है. That is why I told you ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाली बात है. It goes on replenishing the air and nature. Okay, plus water, यानी वाटर जो है बच्चों कंज्यूम भी होता है और उस प्रोसेस के अंदर जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो बाहर भी निकलता है. तो what is the second function of the leaf is? First, to make food by the process of photosynthesis, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाना, and to get rid of excess water by transpiration. कहने का मतलब क्या है? ये जो एक्सेस वाटर यहां बन रहा है भोजन बनाने की प्रक्रिया के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये एक्सेस वाटर क्या है? उसको भी जो क्या है, ये टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, ये जो पत्ते हैं ये इसको हवा में छोड़ते हैं, वेपर्स बन के वो फिर क्या है? हवा में मिल जाते हैं. टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर by the process of transpiration. वो भी हम पढ़ेंगे. What is transpiration?
loss of water through the leaves by the plant is known as transpiration. कहने का मतलब क्या है? द एक्सेस वाटर जो पत्तों द्वारा लूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, द लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर by the plant through the leaves is known as transpiration. तो दूसरा फंक्शन क्या हुआ? To get rid of excess water by the process of, okay. Then respiration, yes. मैंने एक छोटा सा यहाँ लिखा है बच्चों, pores on back इस लीफ के. कहने का मतलब है आप कोई भी पत्ता लीजिए बच्चों, उसकी जो ये जो बैक साइड आपको नजर आ रही है, चाहे वो ये वाला लीफ है, चाहे वो ये वाला लीफ है, thousands of small pores are there. They are known as stomata. They are known as stomata. And they are guarded by the guard cells. दो guard cell होते हैं जो उसकी opening और closing को guard करते हैं. जैसे आपके दो lips हैं, है ना, दो lips. When I am speaking, they are somewhere opening and, but when आपको क्या बोलते हैं स्कूल के अंदर? Silence, no noise. Have your finger on the lips. So that means sound cannot come out from your mouth. Okay? So likewise, guard cells, they guard the opening of the stomata and exchange of gases, carbon dioxide, ये जो photosynthesis के अंदर excess of ये जो ऑक्सीजन बनती है फ्री के अंदर, वो इन्हीं स्टोमेटास के द्वारा बाहर आती है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधे को, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इसी स्टोमेटा के अंदर पहुंचती है. किसके? पत्ते के. तो कहने का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू दीज स्टोमेटा एंड आल्सो व्हाट? एक्सेस ऑफ वाटर इज आल्सो रिलीज थ्रू दीज स्टोमेटा. ये छोटे छोटे छेद हैं पत्ते के अंदर बैक साइड पे, उसके द्वारा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एंड लॉस ऑफ वाटर होता है. ठीक है ना? ओके, कमिंग टू व्हाट हमने देखा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट हैपेंस इज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स, इट्स मैन्युफैक्चर फूड और ग्लूकोज. ऑक्सीजन इज रिलीज इन फ्री प्लस एक्सेस वाटर इज आल्सो रिलीज्ड. ठीक है? ऑक्सीजन वाटर कहां से बाहर आ गए? स्टोमेटा से बाहर आ गए. ठीक है? नाउ दिस फूड और ग्लूकोज, व्हाट दिस फूड, इट इज स्टोर्ड इन द लीव्स in the form of starch, mainly in the form of starch, and from the leaves it is supplied, जैसे हमने स्टेम के बारे में फंक्शन में पढ़ा था, मैन्युफैक्चर्ड फूड को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने के लिए स्टेम का काम होता है, वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम का काम होता है. ओके, सो लाइकवाइज डिफरेंट पार्ट्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये बोला था, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट. Different parts are performing different functions for the plant. Okay. Next आएंगे हम flower, reproductive, this and that. Oh, next lecture. Now again coming back to our main leaf. चलिए, अब हम यहां तक पहुंच गए. ग्लूकोज और फूड और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस कैसे स्टोर होती है? स्टार्च के रूप में. ठीक है. अब दो बातें क्या है? 2 points are there, जिसके ऊपर अभी हमने स्ट्रेस दिया when we are defining photosynthesis. क्या? Sunlight, in the presence of sunlight, that means if there is no sunlight, if we are keeping our plant or a potted plant in a dark room, whether it will be in a position to make food? No. कहने का मतलब क्या है? Sunlight is necessary for the manufacture of food, and food is stored in the form of starch in the leaves. Afterward, yes, it is supplied to the different parts. अगर fruit में पहुंचना है, वो fruit में पहुंचता है, seed में पहुंचना है, ये seed में पहुंचता है, जो हम खाते हैं, fruit and seeds and all that. ठीक है? And in leaves also,
फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, so many parts of the plant we eat root, we eat leaves, we eat stem, so many things like that. So, but here the question is, if we say sunlight is necessary and you can say food is stored in the form of starch in the leaf, how you will prove? छोटी छोटी एक्टिविटीज है बच्चों, मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड में करके दिखाया था, हाउ टू टेस्ट स्टार्च, हाउ टू टेस्ट स्टार्च, सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई. हमने लीव के ऊपर टेस्ट करना है. अगर तो बच्चों रेगुलर क्लास लग रही होती, व्हेन यू विल रीजॉइन द स्कूल, ये एक्टिविटी हम करेंगे, ओके. लेकिन अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं. ये वाला पोर्शन हम डिलीट कर सकते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ओके. Even we can delete here also, no problem. Okay. क्या है बच्चों? We require two things. We require one beaker in which we are having alcohol. Alcohol. What is the function of alcohol? Alcohol test के द्वारा क्या है? When we put green leaf in the alcohol, what it is doing? Alcohol क्या करती है बच्चों? ये जो क्लोरोफिल है आपका, उसको ग्रीन पिगमेंट को रिमूव कर देती है. The color of the alcohol will change into green. Okay, it takes some time. अगर आपने थोड़ा इसको और जल्दी प्रोसेस करना है तो आप इस बीकर को अंदर अल्कोहल लेके एक बड़ा बीकर ले लीजिए, उसके अंदर पानी डाल लीजिए एंड हीट. अल्कोहल गर्म होगी. डायरेक्ट हीट नहीं करना है इसको. क्यों? अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे, इट विल कैच फायर. सो एनीहाउ, ओके. नाउ व्हेन अल्कोहल color has changed from white to green, that means there is no chlorophyll. Chlorophyll nil हो गया है. Now take that leaf out of the alcohol. उसके साथ आप dilute iodine के साथ, जो हमने आगे साथ का टेस्ट किया था, we have taken what? Wheat flour and we have taken what? Another दो टेस्ट किए थे, राइस के साथ किया था. ओके, सेम वे पुट a drop or a two on the what? That leaf from which chlorophyll has been removed. Chlorophyll has been removed. You will find the color of the leaf changes to black. वो क्या कंफर्म करता है? ग्रीन पिगमेंट में कुछ नहीं है. लीफ के अंदर क्या रह गया है? स्टार्च. क्या रह गया है? स्टार्च. नाउ सेकेंड थिंग, लाइट इज नेसेसरी. दो बातें हैं. सनलाइट इज नेसेसरी. अब क्या कीजिए बच्चों? अब कोई भी पौधा है, कोई भी प्लांट है, कोई भी पेड़ है, हमने क्या कहा? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इट इज स्टोर्ड वेयर? इन द लीव्स. तो अगर हम डायरेक्ट टेस्ट करते हैं बच्चों, इट इज ऑलरेडी हैविंग स्टार्च, तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक ए पॉटेड प्लांट, एक जिसमें पौधा लगा हुआ है, उस पौधे को, उस पॉटेड प्लांट को व्हाट वी विल डू? वी विल कीप इट इन ए डार्क रूम फॉर 2-3 days वेयर देयर इज नो लाइट. 2-3 days. उससे क्या होगा बच्चों? उन 2-3 दिनों में what will happen? The food to survive. हम क्या करते हैं? अगर खाना ना मिले बच्चों, क्या मर जाते हैं? No. We survive on the oils and fats or other things
protein stored in our body. Similarly, what it will do? The plant will absorb the stored starch and survive. What will happen? Now there is no starch in leaves. पत्तों में स्टार्च नहीं है. अब क्या कीजिए बच्चों? टेक आउट दैट प्लांट फ्रॉम द डार्क रूम. धूप में रखिए. बट बिफोर कीपिंग इट इन द सनलाइट, किसी भी एक पत्ते को उसके बच्चों 1 पोर्शन उसके ऊपर टाइटली क्या है, एल्यूमिनियम फॉयल से उसको कस दीजिए, टेप लगा दीजिए इसके ऊपर. ओके, नाउ कीप इट दिस प्लांट इन द सनलाइट फॉर 3-4 days. 3-4 days रखो इसे. क्या होगा? अगेन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis will be there. Again food and glucose will be there. But you see, when we are covering this portion of the leaf, इस portion को हमने एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर दिया है. No sunlight. No sunlight. No sunlight is there. इस पे सनलाइट नहीं पड़ रही. एल्यूमिनियम की फॉयल से हमने कवर कर दिया है. ब्लैक टेप से भी आप कवर कर सकते हो इसको. नाउ टेक दिस लीफ, डिटैच कर लो इसको प्लांट से, एल्यूमिनियम फॉयल को उतार दीजिए. फिर वही एक्सपेरिमेंट करना है. क्या करेंगे? पहले हम अल्कोहल वाली एक्टिविटी करेंगे. उसको हम अल्कोहल में डाल देंगे या अल्कोहल के अंदर गर्म करेंगे. उसके अंदर से वही अगेन ग्रीन पिगमेंट विल बी रिमूव्ड and again we will do the test of starch with the help of dilute solution of iodine. And what you will find? ये जो बच्चों आपका जिसके ऊपर आपने एल्यूमिनियम फॉयल रखी थी, बाकी सारा तो ये डार्क ब्लैक हो गया है. इट रिमेन्स व्हाइट, डार्क कलर, डार्क ब्लैक. कहने का मतलब क्या है? जहां लाइट नहीं पड़ रही थी वहां भोजन नहीं बना. इस पोर्शन में भोजन बन गया. यहां स्टार्च है, यहां नहीं है. व्हाट इट इंडिकेट्स? नो फोटोसिंथेसिस, नो ग्लूकोज, नो फूड. Food has not been stored in the form of starch. So by these two activities, when schools will reopen, when you people will rejoin, according to the availability of time, we will do these activities. One more for STEM के, it helps in the absorption. और सबसे कॉमन एग्जाम्पल बच्चों क्या है जो STEM का है? It absorbs, it transports water and minerals and all that. बच्चों आपने देखा होगा कभी आपने फ्रेश फ्लावर्स का वो बुके बनाया, गुलदस्ता बनाया जिसको बोलते हैं, फूलों का बंच. अगर आप उसे पानी के गिलास में रख देते हैं, इट रिमेन्स फ्रेश एंड अलाइव फॉर 3-4 days, 5 days. फ्रेग्रेंस भी देता है, जिंदा भी रहता है. और आप उन फूलों को वैसे रख दीजिए घर में, वो शाम तक ही मुरझा जाते हैं. वो भी एक क्या कहते हैं, और दैट इज वन एक्टिविटी, वो भी हम करेंगे टू प्रूव दैट स्टेम हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. नाउ सो दिस इज ओवर. फोटोसिंथेसिस, यस वी हैव डन. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू मेक, यानी कोई भी चीज जो सूरज की रोशनी में बनती है उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. Activity. Leaves make food by photosynthesis. 2 things. One is that photosynthesis does take place and food is stored in the form of starch, and light is necessary. Light जरूरी है, sunlight जरूरी है. That we have proved with the help of, not proved, we will prove. I have just explained you. मैंने आपको बताई है, करने की हम कोशिश करेंगे. Now जो उसमें लीव्स के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया, वो लीव में जब हमने एक छोटी सी हल्की डायग्राम बनाई थी, हमने क्या बनाया था? ये मिड रिप,
प्लस वेन्स। ऑलमोस्ट ये एक टिपिकल आप लीफ कह सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर, और इसके अंदर ये ब्रांचेज है। अगर आप बच्चों थोड़ा सा इसको, सबसे पहली बात क्या, जब भी बच्चों आप ये वीडियो देखते हैं आप ब्राइटनेस फुल पे देखिए। ये नट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जाल सा बना हुआ है वेन्स का, इसमें भी वैसा ही है, मूली का पत्ता भी वैसा भी है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ बनाना लीव एंड ऑल दैट, मेरे पास बच्चों ये पत्ता है, ध्यान से इसको थोड़ा ब्राइट करके देखना बच्चों, थोड़ा ब्राइट करके देखना है इसको, आपको नजर आएगी मिड रीप के जस्ट पैरेलल, दिस पैरेलल, दे कैन बी पैरेलल लाइक दिस आल्सो। ये मिड रीप है आपकी, ये पैरेलल लाइक दिस आल्सो, और अगर आपकी मिड रीप ऐसी है, दे कैन बी पैरेलल लाइक दिस आल्सो। जस्ट आई वांट टू शो यू, अगर इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये इसकी अच्छो बच्चों क्या है, मिड रीप है इसकी, जो ये थोड़ा इसको जूम कर लेना, थोड़ा ब्राइट कर लेना, आपको ऐसे पैरेलल वेन्स नजर आएंगी। सो टू टाइप्स ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ मिड रीप एंड वेन्स एंड ऑल दैट इज देयर, उनका आपस में रूट्स का भी लिंक है, दैट वी विल स्टडी टुमारो, टाइम इज गेटिंग शॉर्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, टू टाइप ऑफ वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ दिस मिड रिब एंड वेन्स, उसे हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। क्या बोलते हैं, वेनेशन। सो रेटिकुलेट मीन्स नट लाइक, when these mid rib and veins they are making a nut like structure, उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। टाइप ऑफ वेनेशन रेटिकुलेट, when the veins are parallel to the mid rib it is known as parallel venation। रेटिकुलेट वेनेशन का बच्चों आपको ये जितने भी आपके रेडिश है, बोटल गार्ड है, अपना बिटर गार्ड है, वाटरमेलन है, जितने भी आपके क्रीपर्स वगैरह हैं, इनके आपको तकरीबन आपको ये जो है रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगी। और सबसे ज्यादा अगर आपने बेटे रेटिकुलेट वेनेशन देखनी है, टेक द ड्राई लीफ ऑफ द पीपल ट्री, जाल बना, सुंदर जाल बना हुआ आपको नजर आएगा। ओके, विद दिस वी एंड, we will again discuss venation and its relationship with the root tomorrow. Okay, thank you, enjoy your study.